آپ کو معلوم ہے کہ آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے، اور اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 4 سٹرائکس کی گئیں، یہاں پر 5 بے گناہ پاکستانیوں نے شہادت نصیب کی۔ ان میں ایک 3 سال کی معصوم بچی بھی شامل ہے۔ 2 بالغ مرد ہیں، 2 بالغ خواتین ہیں۔ 31 یہاں پہ معصوم شہری انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جن میں 25 مرد ہیں اور 6 خواتین ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 4 جو کوارٹرز ہیں جن میں معصوم لوگ رہ رہے تھے، اور فیملی کوارٹرز تھے 7 لوگوں کے، جو سول آبادی تھی، اس میں نقصان پہنچا ہے۔ مظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے، اور ایک مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی، یہاں پہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 5 سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 یہاں پہ شہید ہیں، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 18 سال کا بچہ۔ اس کے علاوہ ایک ماں اور اس کی بیٹی زخمی ہیں اس وقت۔ مرید کے، یہاں پہ مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا، 4 سٹرائکس کی گئیں، ایک شہید ہے مرد، ایک مرد انجرڈ ہے، زخمی ہے، 2 یہاں پہ لوگ مسنگ ہیں ابھی۔ مسجد جو سی ہے وہ شہید کی گئی ہے، اور ارد گرد کی آبادی میں جو کوارٹرز ہیں غریب لوگوں کے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلی لوکیشن ہے سیالکوٹ، اس کے شمال میں گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پہ 2 سٹرائک کی گئیں، ایک جو ان کا گولا ہے وہ مس فائر ہو گیا ہے، وہ اسی طرح وہ پھٹا نہیں ہے، اور ایک جو ان سے اوپن فیلڈ میں گرا ہے۔ تو یہ 2 سٹرائکس ہوئی، لیکن یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آخری جو لوکیشن ہے وہ ہے شکر گڑھ کے قریب، اور یہاں پہ بھی 2 سٹرائکس کی گئیں، 2 امپیکٹس ہیں گراؤنڈ پہ، نقصان کوئی نہیں ہوا ہے۔ ایک چھوٹا ہسپتال جو ڈسپینسری ہے ایک، اس کو مائنر ڈیمیج ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ، بلا اشتعال، بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتائیں، اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر
सिर्फ कल जो गुजरा हुआ कल है उसके ऊपर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाया गया था, क्योंकि ये बिला जवाज़ जो एक इल्ज़ामात लगाए जाते थे उनके सामने वहाँ पे खोल के रखे गए थे। और आज सुबह मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने मुरीद के और भावलपुर में जाना था, जिसका ऐलान कल शाम को दिया गया था हुकूमत की जानिब से। और आज दिन होने पे मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम लोकेशन पे, इन तमाम मकामात पे जहाँ पे मासूम पाकिस्तानियों का, मासूम जानों का नुकसान किया गया, बच्चों को, औरतों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ले जाया जाएगा ताकि भारत की इस जाहरियत, इस नंगी जाहरियत को तमाम दुनिया देखे और आपके सामने लाई है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेसिकली मैं खुद बहावलपुर से हूँ और मुझे अभी मेरी बहन का फ़ोन आया कि यहाँ पे बहावलपुर के अंदर धमाके सुनाई दिए हैं। इतने में मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया वहाँ पे बहावलपुर के अंदर, तो हर एक ने मुझे ये बताया कि वो धमाके इतने खौफनाक थे कि वो लोधरा से लेके और आगे जो है ना बहावलपुर से बाहर तक वो धमाके जो हैं वो सुनाई दिए हैं। और उसके बाद फिर फुटेज आना शुरू हो गई और फिर हमें पता चला कि मौलाना मसूद अज़हर के जो मदरसा है उसके ऊपर ये मिज़ाइल फायर किए गए हैं। कोई ये कह रहा है कि ये 3 मिज़ाइल है और कोई ये कह रहा है कि ये 4 मिज़ाइल हैं। और फिर जो अभी तक की खबर है, कोई ये कह रहा था कि वहाँ पे एक ज़ख़ीरा है, जंगलात है, वहाँ पे ये धमाका हुआ है और ज़ख़ीरे की तरफ एम्बुलेंसेस जा रही है। बेतहाशा ऑडियोज़ जो हैं वो मेरे पास इस वक़्त आ चुकी हैं इस हवाले से, और वो मैं ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ये पूरा रेवड़ मदरसे खाली करा दिए होंगे लोग सारे भाई। देख चुका हूँ, फुटेजेस सारी की सारी मैं देख चुका हूँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि चौक आज़म के पास जो है वो सड़क के ऊपर, गुंजान सड़क के ऊपर ये 4 मिज़ाइल फायर हुए हैं। इतनी ही देर में मैंने मीडिया के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खुद मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो मुझे एकदम से खबर आई कि सिर्फ़ और सिर्फ़ धमाकों की खबर टीवी के ऊपर दी जा रही है कि 4 धमाके मुज़फ़्फ़राबाद, कश्मीर के अंदर किए गए हैं और 4 धमाके जो हैं वो बहावलपुर में किए गए हैं। और इतनी ही देर में डीजीआई एसपीआर की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं गैर मुसद्दिका, लेकिन टीवी के ऊपर वो रिपोर्ट हो रही हैं। इस वक़्त मेरे पास उसकी सारी फुटेजेस और कैप्चरिंग मौजूद है कि वो हमले जो हैं भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 3 मकामात के ऊपर मिज़ाइल फायर किए हैं। और इस हवाले से काफ़ी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जो बहावलपुर की सारे वॉइस मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं, और भी इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मिल रही हैं। और कहा ये जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिज़ाइल फायर कर दिए हैं। देखें, इस हवाले से हमने देखा कि भारत के अंदर आज ड्रिल्स करवाई गई और कई मकामात पे ड्रिल्स करवाई गई। एक दिन पहले हमें पता चला कि 175 तैयारे पाकिस्तान की सरहद के पास भारत ले आया है और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। उस एक्सरसाइज, एक तरफ वो एक्सरसाइज हुई, दूसरी तरफ भारत के अंदर ड्रिल्स की गई और वहां पे बच्चों को बेंचों के नीचे छुपाया गया और एक पूरा कहराम मचा हुआ था आज भारत के की तरफ से। और कहा यह जा रहा था कि ये हमला होगा, जो सियासी साख है वो मुकम्मल तौर पे होने का खदशा था। अब इसके साथ ही अब हम ये देख रहे हैं कि टीवी के ऊपर भूचाल मचा हुआ है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर 3 मिसाइल हो चुके हैं और डीजीआईएसपीआर ने तबले जंग बजा दी है। और डीजीआईएसपीआर का कहना था कि अब हम जवाब देंगे। और हमने ये देखा है कि इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के अफगानिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। ईरान, जो कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उसने पाकिस्तान के ऊपर जब मिसाइल फायर किए तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, चाहे कुछ भी था, और वो हमने देना ही था।